اس کا 55 باب اور اس کی 6 آیت۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 6 آیت۔ جب سب نکال لیں کہیں آمین۔ بغور سنیے گا، کلام میں یہ بھی کہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو اور خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کی جائے۔ خداوند کی خاص برکتوں، خداوند کا شکر ہو۔ جی میرے عزیزو، کلام کا ٹاپک ہے وہ کثرت سے معاف کرتا ہے۔ آمین۔ وہ کثرت سے معاف کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کلام میں بھی پڑھا کہ خداوند کی طرف پھرے تو وہ رحم کرتا ہے، اور جب ہم اس کی طرف پھر جاتے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم جس طرح دیکھ رہے کہ روزوں کے ایام میں ہم گزرے، روزہ جس میں کوئی شخص اپنی جان، اپنی روح، اپنی ترقی یا کسی الہی مدد کی خاطر محدود وقت کے لیے شام سے شام تک روزہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی جان کو دکھ دوں گا اور روزہ رکھوں گا، یعنی اپنے منہ کو قابو میں کروں گا، کھاؤں پیوں گا نہیں، اور میں روزے میں ٹھہروں گا اور خداوند کی طرف رجوع لاؤں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ اس کے لیے اپنے منہ کو قابو میں کرنا، اپنی آنکھوں کو، اپنے بدن کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے، اور خداوند کی طرف، خداوند کی حضوری میں آنا، گریہ زاری کرنا، خداوند کی حضوری میں جھکنا، دعائیں، التجائیں، درخواستیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، گریہ زاری کا مطلب جان لیجیے۔ گریہ زاری کا مطلب ہے خود کو گرا دینا، گرا دینا، گریہ زاری، خود کو گرا دینا، خداوند کی حضوری میں خود کو گرا دینا اور خاکسار بن جانا۔ اور جب خاکسار بنتے ہیں، خود کو گرا دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں کہ قادر خدا، اے خداوند میں کچھ بھی نہیں، میں کسی لائق، میں ایک ذرے سے کمتر ہوں، میں راکھ خاک ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، یعنی اقرار کرنا اپنی خودی کا کہ میں کسی قابل نہیں، اور اپنے بدن کو، اپنی آنکھوں کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے روک لینا۔ یہ ہے روزہ۔ صرف زبان کو روک لینا ہی روزہ نہیں کہ ہم نے رات سے 12 بجے سے شروع کر دیا، جی کچھ کھایا نہیں ہے، شام کو 6 بجے ہم نے کھا لیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ خود کو گرا دینا، خاکسار بن جانا، خداوند کی پاک حضوری میں جھک جانا، یہ ہے میرے عزیزو روزہ۔ اور جب یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، یعنی ہم خدا کے حضور قربانی پیش کریں، اور خدا کے حضور جب قربانی پیش کرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے روزوں کو قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں، جب ہم گریہ زاری کرتے ہیں، خاکسار بنتے ہیں، خداوند کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں، تو خدا کے اور نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ روزے اور دعا میں میرے عزیزو جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہم خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں، خداوند کی حضوری میں جب ٹھہرتے ہیں تو خداوند کے اور قریب ہو جاتے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں عبار 16 باب 29 آیت، جس میں لکھا ہے سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو، اور اسی طرح عبار 23 باب میں، اس کی 26 آیت میں، زبور 35 میں، زبور 69 میں، اور اسی طرح یسایہ 58 میں۔ اسی طرح میں ساتھ ایک اور حوالہ نکالا، 32 12 باب اور اس کی 14۔
मत्ती 12 बाब उसकी 14 इसको पढ़ेंगे। मत्ती 14 बाब उसकी 41 आयत। कलाम में लिखा है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह फरमा रहे, ये मेरे जीतो यीशु मसीह फरमा रहे कि जब नैनवा शहर तबाह होना था तो यूना वहां गया। खुदा ने उसे भेजा मुनादी के लिए कि जा वहां मुनादी करके 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वहां मुनादी कर तौबा करो, अपने गुनाह से फिरो, खुदावन की तरफ रुजू लाओ, तो वो आसमान से तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। तो फिर लोगों ने यकीन ना किया। लोगों ने कहा कि हम कैसे यकीन करें कि तू खुदा की तरफ से हमें कुछ निशान दिखा। तो उसने कहा, इससे बड़ा मैं क्या निशान दिखाऊंगा? 3 दिन और रात में मछली के पेट में रहा। क्या कोई मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? नहीं, बल्कि मछली उसे खा जाएगी। उसने कहा, इससे बड़ा मैं क्या निशान दिखाऊंगा? मैं जिंदा सलामत और खुदा की मुनादी करने यहाँ आया हूँ कि 40 दिन के बाद ये शहर खुदा बर्बाद कर देगा। अपनी बुरी रविशों से फिरो, अपने गुनाहों से फिरो और तौबा करो, ताकि खुदा सुन ले और तुम्हें माफ करे, शहर को बख्श दे, क्योंकि वो रहीम और करीम है। और लोगों ने इस बात को सुना, कबूल किया और उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और सब ने टाट ओढ़ा, सब झुक गए, किरियाजारी की, खाकसारी में झुक गए मेरे अजीजों, और सब ने रोजे रखे। सिर्फ उन्होंने नहीं, सब जानवर ने भी रोजे रखे, इंसानों ने भी रोजे रखे और जानवरों ने भी रोजे रखे। और कलाम में लिखा कि हम रोजा रखेंगे, टाट ओढ़ेंगे, दुआ करेंगे, इल्तिजाएं करेंगे, किरियाजारी करेंगे, शायद हमारा खुदा अपना इरादा बदल दे। तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने टाट ओढ़ा, किरियाजारी की, खाकसारी की, राख के बैठ गए और राख पे बैठकर उन्होंने दुआएं की, रोजे रखे और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। और जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह ने कहा, मेरे सारे लोग शहर के झुक के दुआएं कर रहे, रोजे रख रहे, मैं क्यों ना रोजा रखूं? और बादशाह ने अपना शाही लिबास उतारा और टाट ओढ़ा और राख पे बैठ गया। और राख पे बैठ के उसने दुआएं की, इल्तिजाएं की, रोजा रखा कि खुदा हमें माफ कर दे, हमारे शहर को माफ कर दे, हमें बख्श दे, हमारे शहर को बख्श दे। और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, उनकी इल्तिजाओं को सुना और उस शहर को बख्श दिया। हालेलुया। और जब हम जानते हैं कि जब कोरोना के दिन थे तो हर घर में गीतों की आवाज आती थी, हर घर में दुआएं होती थी, छतों पे चढ़ के लोग ऊंची ऊंची दुआएं करते थे, ऐ बाप रहम कर, ऐ बाप रहम कर, ऐ बाप रहम कर। लोगों ने रोजे भी रखे कि जो अजाब आया है ये टल जाए। लेकिन क्या हुआ? वो अजाब टल गया, लेकिन जैसे ही खुदा ने वो अजाब टाल दिया, हम फिर अपनी रविशों में खो गए, हम फिर वैसे ही खो गए। कौन खुदा? केड़ा खुदा? भूल गए कि हम छतों पे जाके ऊंची ऊंची आवाज में रो रो के दुआ करते थे, ऐ खुदा रहम कर, ऐ रब्बी रहम कर, यीशु नासरी रहम कर। और खुदा ने रहम भी किया, उस वबा से, उस वायरस से हम सबको बचाया। आज हम जिंदा सलामत खुदावन की पाक हजूरी में खड़े हैं। नैनवा के लोगों ने भी तौबा की, गिरियाजारी की, दुआएं की, इल्तिजा की। अभी जो आयत पढ़ी मैं चाहूंगी एक बार फिर हम उस आयत को पढ़ें।
मत्ती 12 बाब उसकी 41 आयत। कलाम में लिखा है, नेमा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर लियो। देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आई मैंने दूसरी बार पढ़ी, इसकी बजाय आपको इसमें कोई भी गाली नजर आई? दूसरी बार पढ़िए, कोई गाली नजर आई? आप दोबारा अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हो। और किसी को गाली नजर आ रही है? अब मैं बताती हूँ क्या वजह है। सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक मुस्लिम मौलवी बता रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इन्होंने कहा सलीब दी गई, मुर्दों में से जी उठे, 3 दिन रात जो वो है जमीन पे रहे और फिर जिंदा हो गए। तो ये कैसे मुमकिन है? कलाम में देखो, कलाम में लिखा है कि जब शागिर्द उसके पास आए और उन्होंने पूछा कि हम कैसे माने, कौन सा निशान होगा हमारे लिए कि आप मुर्दों में से जी उठेंगे, आपको सलीब चढ़ा जाएगा और आप जिंदा हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने गाली निकाली। यीशु मसीह ने गाली निकाल के अपने शागिर्दों को कहा कि मैं इससे बढ़कर क्या निशान दिखाऊंगा। यीशु मसीह ने गाली नहीं निकाली और उन्होंने कहा कि मैं क्या निशान दिखाऊंगा, मेरे पास तो कोई चीज है ही नहीं जो मैं तुम लोगों को बताऊं। देखिए वो किस तरह की तालीम फैला रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई गाली नहीं, यीशु मसीह के मुंह से कलाम की बातें, कलाम में हक, जिंदगी की बातें निकलती थी। उसने तो फरमाया कि तेरे एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरा भी फेंक दे। यीशु मसीह की तो ये तालीम है। यीशु मसीह ने तो सलीब पे चढ़ाने वालों को, दुख देने वालों को, कील ठोकने वालों को कहा, ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या वो गाली निकाल सकते हैं? ये कैसी तालीम दे रहे हैं? वो कह रहे कि नहीं, यीशु मसीह ना मरे, ना वो जिंदा हुए, ना सलीब दी गई। इनकी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं, उनकी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं। हालांकि पूरी बाइबल पढ़ी, इसमें मुझे बड़ी अच्छी एक आयत याद आ गई। आप निकालिए, मैं चाहूंगी कि आयत निकालिए। 1 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 18 आयत। ये सारी बात हमें साफ जाहिर कर देगी। बड़ी खूबसूरत आयत, सब निकाले ताकि सभी से बगौर पढ़े। और जो हमने 12 बाब पढ़ा उससे भी पूरा पढ़िएगा। अगर कहीं भी आपको गाली नजर आया, मुझे जरूर दोबारा पकड़ के आपने चुप बोला। 1 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 18 है। कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत और कब्र में फतह पाई। यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पे चढ़ाया गया। यीशु मसीह 3 दिन और रात जमीन पे रहे, कब्र में रहे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, ये दावा पूरा करके दिखाया। कोई नबी सामने लाए जो ये दावा पूरा करके दिखाए। मेरे और आपके मसीहा ने मौत और कब्र पे फतह पाई और ये दावा सिर्फ किया नहीं, पूरा करके दिखाया। ये सिर्फ बातें करते हैं, पर यीशु मसीह करके दिखाते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा निशान मैं क्या दिखाऊंगा कि जिस तरह यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी 3 दिन और रात कब्र में रहेगा। और लोगों ने टाट ओढ़ा, रोजे रखे, खिरियाजारी की, आंसू बहाए और खुदा ने उनकी आवाज को सुना और उस मुल्क को बख्श दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें भी बख्श दिया, हमारे गुनाहों को सलीब पे खींच के हमें नई जिंदगी अता की है। आज अगर हम रोजे रख रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, तो इसलिए कि खुदा हमें माफ कर दे। रोजे माफी को जाहिर करते कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, अपने बुरी रविशों से, अपनी बुरी राहों से फिरें,
सिर्फ मुंह को लगाम ना दे, अपनी आंखों को, अपने बदन को, अपने हाथ पांव को भी लगाम दे। हर झूठ से, हर फरेब से, हर चोरी से, हर गुनाह से अपने आप को रोके तो खुदा हम पे भी रहम करेगा। क्योंकि नैनवा शहर के लोगों ने कहा शायद खुदा हम पे रहम करे। वो दुआ में झुक के इल्तिजाएं की, दरख्वास्तें की, खाकसारी की, रोए, चिल्लाए और खुदा ने उनकी दुआ को सुन लिया और खुदा ने उन्हें बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, तौबा, किरियाजारी खुदा को राजी करने के लिए। आज अगर आपका खुदा आपसे नाराज है, आपके काम नहीं हो रहे, आपके पास औलाद नहीं, आपके पास बरकत नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं, तो किरियाजारी कीजिए, रोज़ों में झुक जाइए, खाकसार बन जाइए और वो आसमान के दरीचे खोल के आपकी सुनेगा और सिर्फ सुनेगा नहीं, आपको बहाल करेगा। शर्त यह है कि हम अपने गुनाहों से फिरें, तौबा करें, तो वो हमारी सुनेगा और हमें मुआफ करेगा और फिर मुआफ नहीं बल्कि कसरत से हमें मुआफ करेगा और हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। उसके लिए हमें खुदावन की तरफ रुजू लाना है, दुआ करनी है, इल्तिजाएं करनी, खाकसार बनना है और खुदावन की पाक हज़ूरी में झुकना है। यीशु मसीह ने सलीब पे कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज उस भाई ने जो कुछ कहा, यीशु मसीह ने आज भी कहा, ऐ बाप इसको माफ कर दे, ये सलीब के पैगाम को नहीं जानता, ये नादान है, ये नहीं जानता कि क्या करता है। ऐ बाप इनको मुआफ कर। आज खुदा हमें भी मुआफ करते हैं और हमें भी कहते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते। रोज़ा एक खूबसूरत तरीका है मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की हज़ूरी में झुके, इल्तिजाएं कर, अपने गुनाह का इकरार करें, खाकसार बन जाए और वो आसमान से सुन के हमारे लिए ताजगी के दिन लाएंगे। हमें, हमारे घरानों को, हमारी जिंदगियों को, हमारे इलाकों को, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को बहाल करेंगे। आमीन। सो कादिर खुदा आज के कलाम के सिलसिले से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।